भारतीय कारोबारी कुलभूषण जाधव पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि आईसीजे में सुनवाई अब पूरी हो चुकी है। वैसे तो कोर्ट को अभी फैसला सुनाना बाकी है, लेकिन सुनवाई के दौरान पाकिस्तान की पोल खोल हो चुकी है। कोर्ट ने तो कुलभूषण जाधव के कथित कन्फेशनल वीडियो को पेश करने की पाकिस्तान की अर्जी को ठुकरा दिया है। पूरी तकनीकी विश्वसनीयता, गवाहों के बयान के साथ पुष्ट खबर से हम हर एक खबर को आपको अपडेट करते रहते हैं। इस खबर पर भी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। सिर्फ झूठ, झूठ और झूठ। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भारतीय कारोबारी कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान की ओर से मुद्दा भी झूठा था, दलील भी झूठी थी और सबूत भी झूठे थे। और इसका जवाब था सच, सिर्फ सच और केवल सच। यही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारतीय कारोबारी कुलभूषण जाधव पर हुई सुनवाई का लबोलबाब। इस केस में भारत और पाकिस्तान दोनों पक्षों को सुनने के बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फैसला सुरक्षित हो गया और जल्द ही 11 जजों की बेंच अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन सुनवाई के दौरान पाकिस्तानी झूठ के खिलाफ सच की लड़ाई पानी की तरह साफ दिखाई दी। एक और भारत ने तथ्यों के साथ कुलभूषण जाधव की बेगुनाही के सबूत रखे, काउंसलर एक्सेस न देने के उसके अधिकारों पर चली कैंची पर अचूक दलीलें दी और उसकी मौत की सजा को तुरंत खारिज करने की मांग की, तो दूसरी ओर पाकिस्तान सिर्फ ये कहता रहा कि भारत दुनिया के इस मंच को इस केस के जरिए पॉलिटिकल थिएटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन केस पर पॉलिटिकल थिएटर कौन कर रहा था, ये तो कोर्ट के रुख से ही तब उजागर हो गया जब कोर्ट ने वियना कन्वेंशन के आधार पर ही सुनवाई करने और पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव के कथित कबूलनामे का वीडियो दिखाने से रोक दिया। कोर्ट के इस झटके पर पाकिस्तान की हालत खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली हो गई। Indeed, later that day, extracts of a video of the confession of Commander Jadhav were made public. I intended to share the extract of the video, just around 6 minutes of the video. I understand that the court has viewed the video, but would prefer it not to be shown here. I should make it clear that the video is publicly and readily available for anyone who wishes to see it. The viewers can decide for themselves whether Commander Jadhav is confessing voluntarily and comprehensively. आईसीजे में हुई सुनवाई में भारत को पहले अपना पक्ष रखने का मौका मिला। भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपक मित्तल और वीडी शर्मा ने अपनी दलील रखी और फिर केस में भारत के वकील हरीश साल्वे ने तथ्य पेश किए। The Minister of External Affairs of India has written to the advisor to the Prime Minister of Pakistan on Foreign Affairs on 27 April 2017 for his personal intervention in the matter, but there has been no response. An increasing number of death sentences awarded by military courts in Pakistan have been carried out after 10 April 2017. That's when the death sentence to Mr. Jadhav was confirmed. In fact, over the past 1 month, 18 such executions have been reported through press release. The spokesperson made baseless, contrived and propaganda-driven allegations against Jadhav in India. He said Commander Jadhav, who is responsible for espionage, sabotage and terrorism in Pakistan, was tried according to the laws of the land in a fully transparent manner while preserving his right as per the Constitution of Pakistan. His sentence is based on credible specific evidence proving his involvement in espionage and terrorist activities in Pakistan, resulting in the loss of scores of precious lives of Pakistanis. End of quote. India refutes these allegations. India's position has been and continues to be that Jadhav was kidnapped from Iran and appears to have been framed based upon a confession extracted from him when he was in military custody. भारत के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट में वियना कन्वेंशन के उल्लंघन पर दिए गए उनके ही 3 फैसलों की भी याद दिलाई। There have been 3 instances in which this court has entertained applications. The case of Paraguay and United States of America, which is the first of the cases relating to violation of the Vienna Convention. The second case relating to violation of the Vienna Convention was brought by Germany against the United States of America. In the third case relating to violation of the Vienna Convention was brought by Mexico against the United States of America, known as the Avena case. सुनवाई के दौरान भारत ने ये आशंका जताई कि आईसीजे का अंतिम फैसला आने से पहले ही
कुलभूषण जाधव को फांसी दी जा सकती है। भारत की इस आशंका पर पाकिस्तान के वकील को भरोसा देना पड़ा कि ऐसा नहीं होगा। Firstly, there is no urgency. As far as jurisdiction is concerned, the jurisdiction under the Vienna Convention of 1963 is not as untrammeled as my learned friend has suggested. पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट में फैसले से पहले कुलभूषण को फांसी न देने का भरोसा दिया, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ धोखा देने के लिए जाना जाता है। ऐसे में कोर्ट का फैसला आने से पहले कोई साजिश न रच दी जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। शायद इसलिए धोखेबाज पाकिस्तान से आईसीजे में नियुक्त एजेंट फैजल खान से भारत का पक्ष रखने गए विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी दीपक मित्तल हाथ मिलाने से बचते दिखाई दिए। ये सिर्फ हाथ मिलाने का भरोसा नहीं जगने का मसला भर नहीं है, ये पाकिस्तान की करतूतों पर भारत के गुस्से की एक तस्वीर भी है। भारत को कुलभूषण मामले में कानूनी पहलू पर इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले का इंतजार है, लेकिन भारत पहले ही कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान को बता चुका है कि कुलभूषण को फांसी दिए जाने का मतलब होगा एक सुनियोजित हत्या। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।